रुको, अपना ब्लूटूथ ऑफ कर लेना, अपना ब्लूटूथ ऑफ करो फोन का।
Okay. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yeah. Am I audible? Please reply. Okay. What about others? They will join or not? Yeah. Don't know, sir. No. Okay. Okay. We'll wait for more 2 minutes. Okay. After that, we'll start. It's already 1 o'clock, 11 minutes, right? I don't know whether they'll join or not. Okay. Are you having any doubt regarding the last class lecture? Yes. No, sir. Okay. Yeah. Good afternoon, Ayush. Ayush, good afternoon. Okay. Ayush, were you present in the last class? Ayush, am I audible to you? Please reply. Yes, sir. Okay. So, there is a discussion forum that will be given by your university or college. In that discussion forum, I'll be posting some questions. You have to answer those questions. Okay. I hope you know the information about that, right? You know or don't? No, sir. Okay, you don't know. So please go to the discussion forum. You'll have one ID and password of the website, right? I think you were given already that. So yeah, you go to that website. Okay, log in with your ID and password. Just check the discussion forum. In that discussion forum, you first of all choose this subject, okay, and then you go to the discussion forum, and then in that discussion forum, I'll be posting certain questions. Not like much questions, only 1 or 2 questions will be posted, and you have to like reply back, okay, whatever is there, or you people can discuss there, right? And whatever will be your doubt, if you ask a doubt, then I'll be solving your doubt there itself. Okay. Like the doubt will not be solved immediately. Whenever like once you have posted your doubts, or once you have posted the replies, once I'll see it, after that only I'll be replying to you. Okay, got it? Please go to the discussion forum, okay, and see what questions I have posted over there. Check that, okay, and solve those questions, right? Okay. Yes, sir. Okay, so I hope, like, see, if anything regarding the last class is not clear, you can ask now itself. Okay. Yeah, any doubt regarding the last class? Tell me. Anybody is having any doubt regarding the last class lecture? Please don't hesitate to ask. If you have having any doubt, please ask. Okay. Yeah, any doubts? Tell me. Previous lecture watch नहीं किया. Previous lecture, yeah, tell me. Watch नहीं किया. Okay, you didn't watch that. Yes. Okay, no problem. See, already like I'm having very limited number of classes, right? You also know that. So after the end of this, what is called this session, or the whole thing. Okay, once all the lectures are completed of this particular PPT, I'll share this PPT to you all. Okay, and then you can go through these all PPT and you can learn from there itself. Okay, or even you can. Sir, कहाँ पर मिलेगी PPT? Okay. Okay, I will talk to like the person, and that person will share to you. Okay. सर टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ऑफिशियल, जिसमें नोटिफिकेशंस आती हैं क्लासेस की. Okay, then there itself I'll share. Okay. First of all, let me ask whether like PPT is share like we can share or not. Okay, if it is shareable, definitely I'll share to you. Okay. Otherwise, you can do one thing. You can record the screen itself. Okay. ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें ये पीपीटी फॉरवर्ड करने की. एक बार मैं बात कर लेता हूँ. ठीक है. ठीक है. ओके.
Okay. Okay. Now see, last class we have discussed about the equilibrium in the two sector economy. See whatever I'm discussing here in this particular chapter, these all concept, all formulas was given by Keynes. Okay. Whatever we are learning here in this particular chapter, it is given by Keynes. Okay. And I have already talked about Keynes and classical economics in my first lecture. If you are absent in that lecture, you please go through books. You know, in the book also it is given about classical and Keynesian economics, and some difference I have told regarding that. If you learn from there also, you can understand. Okay. Now see here. Here in this particular PPT, in this particular slide, what I'm going to tell or teach you, you please listen very carefully now. Okay, you will understand. See, about two sector economy, I have already discussed. For a two sector economy to be in equilibrium, okay, aggregate demand should be equal to aggregate supply. Always remember one thing: whenever the economy that has to be in equilibrium, aggregate supply should be equal to aggregate demand. Okay. And I have already talked about aggregate demand, and aggregate supply also I have talked. Okay. What is aggregate demand? The sum total demand of all the goods and services that is produced in the economy. Okay. And here you can see in equation number 1, Y is equal to C plus I is the aggregate demand equation. Okay. Okay. Is it clear? It is the aggregate demand equation. And equation number 2 is the aggregate supply equation. Please understand, aggregate supply is nothing but your national income. Okay. Aggregate supply is nothing but your national income. See, aggregate supply is nothing but your national income. And what is national income? National income is the total income of the economy, right? In the economy, you have different factors of production: land, labor, capital, and entrepreneurship. What is their income? Sum total we take and we find out aggregate income, or that is also known as aggregate supply. Okay. Now, please understand, this is not in like unit terms. Okay. Like it is not, I'm not telling you in quantity, like aggregate supply is equal to 100 units and aggregate demand is equal to 200 units. No, these all are in monetary terms. Please understand. Okay. We will not count the number of units produced in the economy. Okay. We'll count what value is produced in the economy. Like for example, one economy is producing one television, one bicycle, one motorcycle, one car. Okay. Suppose it is producing 100 quintals of wheat, then we will take the price of all these. Okay. We'll take the price of all these, we'll calculate the total price. That total price is the aggregate supply. Okay. And if whatever is the quantity, like 100 fridge is produced in the economy, 100 fridge into price of that fridge will give you the total revenue. That I'm talking about, that particular total revenue. That total revenue is your aggregate supply. Okay. Understood? Is it clear till this much? Yeah. Is it clear? Yeah. Tell me, is it clear till this much? Yeah. Tell me yes or no. Okay. We'll proceed. Okay. Now you see, in the two sector economy, only two sector were there, right? That was household and the other was farm, right? Household and the farm. And you see the graph. I have drawn the graph before also, right? In that particular figure, you will see, yeah, this is the two sector model, right? Can you see the screen, everyone? Please reply. Okay. Then I will know that you people are with me. Yeah. Can you see the figure here? This is the graph or figure, whatever you tell. Okay. Tell me, what is this? Two sector economy where farm and household is there. So what will be the aggregate demand in this particular two sector economy? In this two sector economy, demand will be coming from the farm and demand will be coming from the household, right? Got it? So what demand will be there? See, demand Y is equal to C plus I. Consumption demand will be coming from where? Coming from the household sector. And investment demand will be coming from where? It will be coming from the farms. So what will be the total demand in the economy? Y is equal to C plus I. Is it clear? Yeah, tell me, is it clear till this much? Yes. Yeah, please tell me something, yes or no. Yeah. Is it clear? Tell me. Yes. Yeah, tell me fast. Yes, sir. Yes, sir. Okay, the next is, now you see, now the demand is coming, right? Aggregate demand. Now you have the demand for consumption demand and the investment demand. Now, you know, the sum total of these demand
obviously this is the payment that you are going to make to the supplier, right? To the firm you will make payment for the consumption good, right? And the firm will make payment for the investment goods, right? So the finally the payment what you are making in the economy, okay, the payment is made to someone, that is not of that is not, leave that to whom we are making the payment and all, but what payment you are making, right? That payment finally becomes the income, and that income is either consumed or saved, which is given in equation number 2, and that becomes your aggregate supply. Okay, and I have told you aggregate supply is nothing but the national income. Okay, these two terms are interrelated, or these two terms can be exchanged for each other. Okay, now in the economy, to be in equilibrium, what should be there? Aggregate supply should be equal to aggregate demand. Okay, now what is your aggregate demand? Aggregate demand is equal to C plus I. C plus I should be equal to C plus S. C and C cancel. What is remaining? Remaining is investment should be equal to saving. That means in a two sector economy, to be in equilibrium, okay, the investment should be equal to saving, then only the economy will be in equilibrium. Okay, equilibrium means that is a position, or that is a state where the economy need not do anything. Okay, the economy will attain a stable position. The economy will not have fluctuations in their income and employment or output. Okay, got it? That means whatever output it is producing, that economy is able to sell that amount of output. That is known as the position of equilibrium or the state of equilibrium. Okay, is it clear? Tell me, is it clear till this much? Yes. Yeah. Shall we proceed? Yes, sir. Okay. Now the same thing in the three sector economy, what will happen? See, in three sector economy, you see this diagram. Now in the three sector economy, there are three sectors, right? Household, government, and firms. So firm will have investment demand. Government will have what? Government will have government expenditure. That government expenditure is also a demand for the government. And household will have what? Household will have consumption demand. Now add the aggregate demand in three sector economy. What you will have? You'll have consumption demand plus investment demand plus the government demand, which is also known as the government expenditure. Simple. Add this will be your aggregate demand, right? Now in the three sector economy, whatever income the economy is earning, they will spend this income on what? They will obviously spend this income on consumption, plus they will save some amount, plus now the government sector is coming, so they have to pay the tax to the government from that particular income, right? On one side you are doing the expenditure, on one side you are showing what is your total expenditure or aggregate demand in the economy. On the other side, you are showing that this income is going to which sectors, this income is going to which fields, you can say. So you are consuming out of this national income, you are saving out of this national income, and you are paying tax out of this national income, right? So these y on equation number 2 should be equal to the y on equation number 1. So y is equal to y. So c plus I plus d should be equal to c plus s plus t. Equate these two. What you are going to get? You are going to get consumption and consumption will get cancelled. So saving plus taxes is equal to investment plus government expenditure, right? Now here this equation is having a meaning here. Okay, in the three sector economy, if the economy want to be in equilibrium, or if you want to achieve the position or the state of equilibrium where aggregate demand is equal to aggregate supply, then your savings should be equal to investment. That means whatever the economy is saving, that should be actually invested in the economy. And whatever tax the government is collecting, that tax should be equal to the government expenditure in the economy. That means गवर्नमेंट जितनी टैक्स कलेक्ट करेगी, जितनी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट को उतना ही खर्चा करना है, और लोग जितने पैसे सेव करेंगे उतना ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, तभी जाके इकोनॉमी जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी. दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. ओके, now rearrange this. Now rearranging this equation, what you will get, you can see that by rearranging the equation, just a second, by rearranging this equation, what you can see, g minus t is equal to s minus I. Right now you see I have rearranged this equation, the last line, s plus t is equal to I minus g. Now g minus t is equal to s minus I. Now what is written here? See, read this line very carefully. This is what the interpretation in economics means. We are interpreting different variables here. Okay, if you are able to interpret these type of variables, that's all. Simple, it's very simple. That is what is economics. The above equation is very significant as it depicts what would be the consequences if the government budget is not balanced, right?
If the government budget is not balanced, that means if your government expenditure is not equal to taxes, what will happen? Right? See, if the government expenditure G is greater than the tax revenue, that means G is greater than tax revenue, the government will have a deficit budget. That means deficit budget का मतलब क्या होता है? डेफिसिट बजट का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है खर्च ज्यादा कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो कमा रही है वो कम कमा रही है टैक्स रेवेन्यू के थ्रू. Whatever government is earning through tax revenue, that is less than the government expenditure. So government will have a government deficit, right? To finance the deficit, the budget deficit, the government will borrow from the financial market. अब गवर्नमेंट यहाँ पे देखो टैक्स रेवेन्यू तो कम कलेक्ट कर रही है, लेकिन खर्च ज्यादा कर रही है. खर्च कहाँ से ज्यादा कर रही है? ऑब्वियसली फ्रॉम समवेयर इट विल बी बोरोइंग, राइट? So it will borrow from the financial markets. Now when it borrow from the financial market, try to think. अब गवर्नमेंट ही सारा पैसा मार्केट से उठा के ले जाएगी, तो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स है, प्राइवेट जो बिजनेसमैन है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा लोन लेने के लिए? और हम लोगों को सब पता है कि बिजनेस फॉर्म्स वगैरह जो भी होती है, उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो है कुछ अमाउंट लोन का अमाउंट होता है और कुछ अमाउंट ओनर्स का इक्विटी होता है. हम लोगों ने अकाउंटिंग में भी ये पढ़ा होगा, राइट? तो वो जो लोन अमाउंट का जो रकम है ना, जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा अगर गवर्नमेंट ही सारा पैसा उठा लेती है मार्केट से. तो जब गवर्नमेंट सारा पैसा उठा लेगी मार्केट में से और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए पैसा ही नहीं रहेगा, तो क्या करेगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या करेगा? कंट्री में जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ने से यहाँ पे तुम देखो क्या हो रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है. ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कम हो रहा है, इसको इकोनॉमिक्स में क्राउडिंग आउट बोला जाता है. इज इट क्लियर? टेल मी, इज इट क्लियर? या इज इट क्लियर टिल दिस मच? Yes. Yes, sir. Please tell me. Okay. This is known as crowding out. Okay. Now, in other words, government borrowing crowds out private investment. Another important conclusion that can be drawn from the national income account identity incorporating government expenditure relates to the condition for the equilibrium in the financial market. National income identity with the government expenditure. देखो, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा y क्या था? तुम्हारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड था. y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस जी था, राइट? अब मैंने इस इक्वेशन को इंटरचेंज कर दिया, y माइनस सी माइनस जी कर दिया, इन्वेस्टमेंट को एक साइड में ले आया. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? जस्ट अ सेकंड, ये ऊपर ही नहीं जाता है, ये ऊपर कैसे जाएगा? ओके, इसे मैं नीचे ले आता हूँ. Okay, now you see in the above equation y minus c minus g is equal to I. y minus c minus g represents the national savings. अब देखो, तुम्हारा जो इनकम है, मतलब देश का जो इनकम है, उस इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया. ये बराबर क्या होना चाहिए? ये बराबर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. और ये क्या है? y minus c minus g क्या है? ये है नेशनल सेविंग्स. ठीक है, ये नेशनल सेविंग्स बराबर होना चाहिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट के बराबर. एडिंग एंड डिडक्टिंग t फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन. ऑफ t को ऐड करो और माइनस करो, क्या हो जाएगा? y माइनस c माइनस g प्लस t माइनस t इज इक्वल टू I. अब इस इक्वेशन को मैंने देखो कैसे इसे मिलाया, y माइनस c माइनस t, राइट? ये माइनस t को मैं इधर लेके आया हूं, प्लस t माइनस g इज इक्वल टू I. कैन यू सी द इक्वेशन? y माइनस c माइनस t प्लस t माइनस g इज इक्वल टू I. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो, where y minus c minus t is the private saving and t minus g is public saving. The total saving in the economy is private saving plus public saving. ये जो public saving है ना, ये गवर्नमेंट करती है. और गवर्नमेंट सेविंग कब कर सकती है? गवर्नमेंट सेविंग तभी कर सकती है जब टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से बड़ा हो. When tax revenue, whatever tax revenue the government is collecting, that should be greater than the government spending or government expenditure, then only there will be government saving or public saving. और लोग पैसा कब सेव करेंगे? हमारे जैसे लोग, प्राइवेट पीपल कब पैसा सेव करेंगे? जब उनका इनकम बड़ा होगा. कब बड़ा होगा? उनके खर्चे से, जो कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और उनके टैक्सेस से. ठीक है, अगर आपका जो इनकम है, देखो, टैक्स देने के बाद और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद जो इनकम बच जाएगा, वही तो आपकी सेविंग कहलाएगी ना. तो वो सेविंग आपकी प्राइवेट सेविंग हो जाएगा और ये सेविंग पब्लिक सेविंग हो जाएगा. प्राइवेट सेविंग प्लस पब्लिक सेविंग विल बी इक्वल टू टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी. इज इट क्लियर? यस.
Tell me, is it clear till this much? Yes, tell me, is it clear? Yes. Yes, sir. Always remember, national saving is equal to private saving plus public saving. और प्राइवेट सेविंग कैसे आएगा? प्राइवेट सेविंग आएगा तुम्हारा इनकम में से। देखो, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये होल इकोनॉमी को दिमाग में रख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि एक इकोनॉमी में ऐसा ऐसा हो रहा है तभी जाके ऐसा हो रहा है। अगर आपको और सिंपल तरीके से पढ़ना है तो आप एक इकोनॉमी में दो ही लोग को रख लो, उसके बाद समझो। एक प्राइवेट आदमी है और एक गवर्नमेंट है सपोज यहाँ पे, और एक फॉर्म है, 3 आदमी को रख लो, बस 3 लोगों को रख लो आप। 3 लोगों को रख के उसका इनकम देखो क्या होगा, ठीक है। अगर आप एक इंडिविजुअल को ही कंसिडर करके बनाओगे तो भी ये इक्वेशन सही बैठेगा, ठीक है, और होल इकोनॉमी को भी कंसिडर करके बनाओगे तो भी ये इक्वेशन सही बैठेगा, ठीक है। और अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बस जब आप खुद से पढ़ोगे, खुद से दिमाग लगाओगे, तब और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। नाउ अब और एक सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर इंट्रोड्यूस करते ही आपका एग्रीगेट आउटपुट क्या हो जाएगा, या एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कंजम्पशन डिमांड तो था ही, इन्वेस्टमेंट डिमांड तो था ही, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो था ही अभी तक, राइट। अब क्या हो जाएगा, अब एक नेट एक्सपोर्ट का भी डिमांड आ जाएगा। ये नेट एक्सपोर्ट का डिमांड क्या है, अब जो यहाँ के लोग हैं, सपोज लेट अस टेक इंडिया इनटू कंसिडरेशन, जो यहाँ के लोग हैं, इंडियन लोग हैं, ये बाहर की चीजों को भी डिमांड करते हैं, बाहर के गुड्स एंड सर्विसेज को भी डिमांड करते हैं, तो वहां से भी डिमांड बन के आएगा ना, तो वो डिमांड को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी हो गया। इस टोटल डिमांड इन द इकोनॉमी को एग्रीगेट डिमांड भी बोला जाता है, या एग्रीगेट आउटपुट भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। नाउ NX इज व्हाट, NX इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। ये जो EX है ये एक्सपोर्ट्स है, और IM जो है ये इंपोर्ट्स है, ठीक है, ध्यान रखना। और नेशनल इनकम क्या होगा फिर, नेशनल इनकम वही, फिर आपका इनकम कहाँ जाएगा, आपका देश का इनकम जो है वो कंजम्पशन में जाएगा, आप कुछ पैसा सेव करोगे और कुछ पैसा टैक्स पे करोगे, राइट। ये जो नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम एग्रीगेट आउटपुट या एग्रीगेट डिमांड के बराबर होना चाहिए। दैट मींस आपने जितना भी कमाया उतना आपके खर्च के बराबर होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, हमने कमाया क्या, हमने कमाया नेशनल इनकम Y, जो कि किसके बराबर है, C प्लस S प्लस T, और हमने खर्च क्या किया, हमने खर्च किया C प्लस I प्लस G प्लस NX। अब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया मैंने, देन I प्लस G प्लस NX इज इक्वल टू S प्लस T हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया मैंने, सॉल्व कर दिया मैंने उसको। उसके बाद रिलेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर विद ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस किसे कहा जाता है, यही नेट एक्सपोर्ट को ट्रेड बैलेंस कहा जाता है। अब मैंने इक्वेशन देखो, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX कर दिया, एग्रीगेट डिमांड वाला इक्वेशन, इसको कंसीडर किया। ये रिलेशनशिप ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड एक्सपेंडिचर को बताना चाह रहा हूँ विथ ट्रेड बैलेंस। नाउ देखो, अब नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू y माइनस C प्लस I प्लस G, where Y is the aggregate output and C plus I plus G is the aggregate expenditure. Now, if aggregate output exceeds aggregate expenditure, we have favorable trade balance. ठीक है, export of a country is greater than the import, so the country will have a trade surplus. If aggregate expenditure exceeds aggregate output, then the economy will have unfavorable trade balance, and hence there will be a trade deficit for that country. Very simple. बस ये इक्वेशन से, ये जो टॉप वाला इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX, इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कंट्री के जो ट्रेड बैलेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब ट्रेड सरप्लस में है या नेगेटिव है। अब y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस NX को मैंने रीअरेंज किया। रीअरेंज करते समय मैंने नेट एक्सपोर्ट को एक साइड में रख लिया, y के साथ मैंने डिडक्ट कर लिया C प्लस I प्लस G। सिंपल मैंने ये एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किया है यहाँ पे, ठीक है। सो NX इज इक्वल टू y माइनस C प्लस I प्लस G। अब y तुम्हारा क्या था, ध्यान से सुनना, y क्या था, एग्रीगेट आउटपुट था, एग्रीगेट आउटपुट जो इकोनॉमी में हो रहा है, ठीक है। अब ये एग्रीगेट आउटपुट जो है, इसमें से मैंने C प्लस I प्लस G डिडक्ट कर लिया। ये क्या है, C प्लस I प्लस G, ये टोटल एक्सपेंडिचर है ना, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में। अब ध्यान से सुनना, ये जो एग्रीगेट आउटपुट है, सपोज तुमने 1 लाख का गुड प्रोड्यूस किया, ठीक है, तुमने 1 लाख का गुड प्रोड्यूस किया, 1 लाख का, ठीक है। अब C प्लस I प्लस G जो है, ये जो इकोनॉमी में है, तुम्हारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, तुमने 1 लाख का गुड प्रोड्यूस किया, लेकिन तुमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना किया, सपोज 50,000 का ही किया। तुम्हारे इकोनॉमी में तुमने 50,000 के ही गुड खरीदे, ठीक है, तो 50,000 बाकी बच गया ना, 1 लाख माइनस 50,000,
तो बाकी के 50,000 अमाउंट के जो गुड्स बचे हुए थे, जो एग्रीगेट आउटपुट थे, वो कहाँ गए? वो एक्सपोर्ट्स में चले गए। दैट मीन्स वी हैव सोल्ड दैट, वो एक्सपोर्ट्स में चले गए। वो तो तुम्हारे पास पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है ना, दैट मीन्स योर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स, राइट? योर एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। बट नाउ यू सी व्हेन यू, अब तुम्हारे घरेलू ही खर्चे जो कि C प्लस आई प्लस जी, अगर C प्लस आई प्लस जी बड़ा है तुम्हारे ये एग्रीगेट आउटपुट से, दैट मीन्स you are spending more in the economy, that means C plus I plus G is more, right, then your aggregate output. That means what? ये खर्च जो तुम कर रहे हो ये कहाँ से लाके कर रहे हो? Obviously you are importing more, right? So when you are importing more, what will happen? When you are importing more, you will have a negative trade balance, and when you are exporting more, you will have a positive trade balance. Simple. Okay, just for your convenience I'm telling you now, if Y is greater than C plus I plus G, you have a positive trade balance. If Y is lesser than C plus I plus G, you have negative trade balance. If net export is greater than zero means positive है, positive है तो क्या मतलब? aggregate output is greater than aggregate expenditure. We are having export, we are having more amount of exports, we are having positive trade balance. If Y is lesser than C plus I plus G, we are having negative trade balance. That means net export is lesser than zero. That means you have more imports and less exports. Is it clear? Yeah, tell me, is it clear? Yes, Yes, sir. बोलो, इतना तो क्लियर हो गया? ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ नेशनल इनकम, ये सब तो पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, सर्कुलर इनकम वगैरह ये सब पढ़ा दिया। नाउ व्हाट इज नेशनल इनकम? देखो इसमें कुछ, अब नेशनल इनकम का भी डेफिनेशन पढ़ोगे वो भी सेम होगा, जीडीपी का भी डेफिनेशन पढ़ोगे सब सेम होगा। देखो सेम तो सब है, लेकिन देयर इज अ माइनर डिफरेंस। इफ यू हैव स्टडीड इन क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, from there you can find out what is the minute difference between GDP, what is the minute difference between GNP। बहुत minute difference है। obviously मैं पढ़ाऊंगा आगे आने वाले क्लासेस में, मैं वो भी क्लियर करवा दूंगा, लेकिन बस यहाँ पे इस टॉपिक पे आते हैं और ये समझते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। वेरी सिंपल लैंग्वेज में, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली इन अ कंट्री। अब एक कंट्री में जितने सारे भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ भी आउटपुट ले लो तुम, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो सब आउटपुट का वैल्यू ले लो, उन सबको ऐड कर दो, वो तुम्हारा नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 क्लासेस। वन द ट्रेडिशनल डेफिनेशन, ये सब खुद से पढ़ लेना, ये बुक में भी और तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल होगा ना। आई होप स्टडी मटेरियल इज गिवन टू यू, राइट? यस, है या नहीं है स्टडी मटेरियल? ओके, वो स्टडी मटेरियल में भी ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, मैंने वो वहीं से उठा के मैंने यहाँ पे डाला है, ताकि ये मतलब तुम लोग देख लेना ये खुद से। ये बस डेफिनेशन है, ये एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आता है, जो एग्जाम में आता था मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया। ठीक है, फेसेस डेफिनेशन है, पिगोवियन डेफिनेशन है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, प्लीज अंडरस्टैंड। एक होता है नेशनल इनकम, एक होता है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ये होते हैं एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। अब ये जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल के अंदर में एक कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। सर ये भी तो वही डेफिनेशन था ना, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री। दोनों का एक ही कैसे हो गया सर? दोनों का मतलब एक ही कैसे हो गया? मैंने बोला ना स्लाइड डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, जो कि बुक में भी नहीं लिखा रहता है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ सुनना। देखो होता क्या है वास्तविक में, ये जो नेशनल इनकम जब मैं बोल रहा हूँ ना, नेशनल इनकम में दो चीजें आ जाती है। एक आ जाती है रेसिडेंट इंडियन प्लस नॉन रेसिडेंट इंडियन का इनकम। ठीक है, अभी रेसिडेंट इंडियन क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन इनकम क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन कौन लोग है, इसका डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लास 12 के बुक में दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स के बुक में। ठीक है, अब ध्यान से ये सुनिएगा बस। यहाँ पे नेशनल इनकम का बात जब भी होता है ना, इट इज द इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट इंडियन प्लस द नॉन रेसिडेंट इंडियन। दैट मीन्स रेसिडेंट इंडियन कौन? जो लोग यहाँ पे कमा रहे हैं, जो लोग हमारे कंट्री में रह के कमा रहे हैं, प्लस एनआरआई जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है, जो बाहर बैठ के कमा रहे हैं, उनका भी इनकम को हम लोग ऐड कर देंगे, नेशनल इनकम आ जाएगा। तो ये डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो रेसिडेंट इंडियन कमा रहे हैं बस, और हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में कमा रहे हैं। ठीक है, इंडिया का जो भी लैंड बाउंड्री है, जो भी
ओशन बाउंड्री है, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो, ठीक है, रेसिडेंट इंडियन जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका वैल्यू को लिया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। एक बेसिक डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया। National income is the income of resident plus non-resident Indian, and gross domestic product is the income of only resident Indian. Okay, that too he has to produce within the domestic territory of India. ठीक है, हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? हमारे पास लैंड है, हमारे पास ओशन है, हमारे पास एयर स्पेस है। एयर स्पेस में भी हमारा जो एयर स्पेस है उसमें भी क्या बोलता है, उसमें भी ये जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह उड़ते हैं उससे भी कमाया जाता है पैसा। एयर टिकट्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमाया जाता है, राइट? एयरलाइन सर्विस देती है। तो देखो एयर भी एक डोमेस्टिक टेरिटरी है। हमारा जो डोमेस्टिक एयर है, जो फ्लाइट्स वगैरह उड़ती है, उससे भी हम लोग पैसा कमाते हैं, वो सब इंक्लूड होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है? अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो ये देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज at market value resulting from the current production during country including net factor income from abroad. देखो, जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी, जब जीडीपी में आप नॉन रेजिडेंट इनकम का भी जो भी कमाया हुआ पैसा को ऐड कर दोगे, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके ओके, you tell me whether like you have learned these all or not in class 12. Tell me. Yes, yeah, tell me one thing. Yes, tell me. Yeah, are you there? सर 12th में साइंस थी। अच्छा, 12th में साइंस थी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, 12th में साइंस थी। In the upcoming slides I will tell you, okay, like how these things are calculated. No need to worry about anything. Okay, अपकमिंग स्लाइड्स में मैं सब कुछ बता दूंगा। मैंने फॉर्मूला वगैरह भी लिख रखा है। मे बी इन द नेक्स्ट पीपीटी आई विल टेल यू, और इन दिस पीपीटी इफ इट इज अवेलेबल आई विल टेल यू। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। सो द बेसिक डिफरेंस आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? व्हाट इज, जहां भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा होगा ना, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, प्लीज अंडरस्टैंड। एंड डोमेस्टिक इनकम विल बी इक्वल टू द इनकम ऑफ द रेसिडेंट इंडियन। और जहां भी नेशनल इनकम लिखा रहेगा या नेशनल प्रोडक्ट लिखा रहेगा, that will be the income of resident Indian plus non-resident Indian. Okay, got it. I'll definitely explain this, no need to worry. Don't go in much detail here because these are just the definitions. You will not know the definitions until you know the formulas. So once I will teach you the formula, definitely you can solve, or you can know all the definitions very easily. You even can write the definitions by yourself. Don't mug it up. I will definitely teach you. Okay, now net domestic product is the net value of the net. Okay, ये कुछ भी नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तभी समझ में आएगा, ठीक है? ऐसे ये नहीं समझ में आएगा। Okay, methods of measurement of national income. Okay, just let me see whether I have given this formula or not. Okay, I have not written anywhere. Okay, I have not given those formulas here. I'll try to teach you. Okay, so अभी तो ये पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? फिर I'll teach you from the formulas in the next class so that it will be easy for you people. Okay, so see, okay, you'll not understand. Obviously, you're from the science background, then it is very difficult for you to understand now. So from the basic itself, I will teach you in the next class. Okay, I'll give 5 to 10 minutes and then complete that. Okay, now you see, okay, these also you'll not understand. This also you'll not understand. This also you'll not understand. Okay, come to this point. Okay, per capita income. What is per capita income? See, what is per capita income? हमारे कंट्री में जो भी नेशनल इनकम आया, उस नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो। Okay, that is per capita income. Per capita income is nothing but the per head income. Okay, got it? Is it clear? Is it clear? In simple language, I have told you. Per capita income is nothing but the per head income. Yeah, tell me, is it clear? Yes. Clear, G? Tell me, yes or no? Yes, sir. Okay. The next is real per capita income for 2023. अगर आपको real per capita income for this year ये calculate करना है, तो क्या करोगे? Real national income for 2023 divided by population in 2023. With this formula itself,
you can understand what is real per capita income. Okay, next. Okay, next one is okay, this concept enables us to know the average income and the standard of living of the people. सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है? ये जो पर कैपिटा इनकम है ना, ये पर कैपिटा इनकम से हमें ये पता लगता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों की एक कंट्री में वो क्या है। जैसे आप पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए देखोगे वो काफी ज्यादा हाई है, और पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया देखोगे वो काफी ज्यादा लो है, ठीक है? क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, राइट? और डेवलपिंग नेशन में पर कैपिटा इनकम दैट मींस पर हेड इनकम कम होती है, लेकिन डेवलप्ड नेशंस में पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये एक बहुत ही बेहतर तरीका हो सकता है हमें पता लगाने का कि एक कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ठीक है? अगर वो कंट्री डेवलप है तो ऑब्वियसली उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज्यादा हाई होगा, ठीक है? और एक कंट्री डेवलपिंग है तो उसका पर कैपिटा इनकम है जो कम होगा, और एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो ऑब्वियसली उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ही लोअर लेवल पे होगा। ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम टू डिस्पोज ऑफ, ठीक है? आपके हाथ में लास्ट में बचा हुआ पैसा जो जिससे आप मतलब खर्च कर सकते हो, मतलब खर्च करने के लिए जो इनकम। तो पहले आपका इनकम, जैसे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको सबसे पहले सैलरी आएगा, सैलरी में से आपका पैसा टैक्स में कटेगा, आपका पीएफ में पैसा जाएगा, ठीक है? आपका सपोज इंश्योरेंस पेमेंट कर रहे हो तो उसमें पैसा जाएगा, तो जो भी आप अमाउंट सेव कर रहे हो, ठीक है, ये सब पैसा चला जाएगा। तो लास्ट में जो पैसा बच के आएगा ना, जो पैसा आपके हाथ में आएगा खर्च करने के लिए पैसा, उसे बोला जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आपका खुद का इनकम, ठीक है? सो यहाँ पे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द पर्सनल इनकम माइनस taxes at the personal level. It measures the amount of net income that remains after household pays all their tax levies. जितने सारे भी टैक्स आप पे इम्पोज करे गए वो सारे टैक्स पे करने के बाद आपके हाथ में जो पैसा बच जाता है उनको कहा जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इज इट क्लियर? या टेल मी, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, next, method of measurement of national income. Okay, now there are basically 3 different ways of measuring national income. Okay, one is the value added method, second is the income method, and third one is the expenditure method. Value added method, income method, and expenditure method. Very simple. See, अब हम लोगों ने भी 12th में ये फॉर्मूलाज जो है मगअप ही किया था, ठीक है? एंड ऑब्वियसली हमारे जितने सारे भी प्रोफेसर्स थे उन लोगों ने भी बोला था फॉर्मूला मगअप करने के लिए ही, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, कहाँ से आया, किसी को मतलब उतना डिटेल में नहीं पता, और हमें डिटेल में जाना भी नहीं है। बस फॉर्मूला को मगअप कर लेना है, क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला में पुट करना है, जितने सारे भी नंबर्स दिए रहेंगे और फिर आंसर निकालना है। वेरी सिंपल एज दैट। और वैल्यू एडेड मेथड से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, कभी कल ज्यादा टफ रहा तो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है? और इनकम मेथड से कभी कल 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और एक्सपेंडिचर मेथड से भी 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने तो, ठीक है? नाउ व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड? ये जो है ना मेथड्स, ये जितने सारे भी मेथड है, 3 ही मेथड है, ये 3 मेथड जो है आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बताते हैं, ठीक है? नेशनल इनकम होता क्या है सर? देखो, नेशनल इनकम का दूसरा जो नाम है वो NNP@FCB है। यहाँ पे देखो, मैं ये जो कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में, कैन यू सी दैट NNP@FC? कैन यू सी दिस वन? Yes. टेल मी। हाँ, नेशनल इनकम को दूसरी भाषा में NNP@FC भी बोला जाता है, NNP@FC। NNP@FC का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एड फैक्टर प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एड फैक्टर प्राइस। अब मैं तुम्हें ये आगे का फॉर्मूला तो बता नहीं सकता क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर मैं बता सकता हूँ, वैल्यू एडेड। अब ये जो वैल्यू एडेड मेथड है, इससे हम लोग नेशनल इनकम कंट्री का कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो वैल्यू एडेड है, ये वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ये वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? देखो, हमारी कंट्री में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स हो गए आपके एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, राइट? सेकेंडरी सेक्टर्स हो गए आपके मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एंड टर्शियरी सेक्टर हो गया आपका सर्विस सेक्टर। ये तीनों मिलके जितने सारे भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका वैल्यू को ले लो आप, वो सारे वैल्यू ऐड कर दो, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा, माइनस ये तीनों सेक्टर्स में
जितना भी आपको इनपुट का खर्चा लग रहा है, जितना भी इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा लग रहा है, या इंटरमीडिएट कंजम्पशन का खर्चा लग रहा है, या जो भी रॉ मटेरियल्स आप यूज कर रहे हो एज ए इनपुट, उसको माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा ना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, मतलब वैल्यू एडेड कितना है। सपोज फैक्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूँ। फैक्ट्री में सपोज एक ब्रेड बनाने के लिए जो भी लगता है, जो भी सामान लगता है, उसको वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स मैंने मान लिया, ठीक है। ऑब्वियसली वीट लगेगा, ठीक है। वीट के बाद उसको मतलब और भी बहुत सारे खर्चे हैं, राइट। वीट लगता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स लगता है, ठीक है, और भी कुछ लगते होंगे, वो सब मैंने वैल्यू ऑफ इनपुट मान लिया। सपोज वैल्यू ऑफ इनपुट हो गया मेरा 50 रुपीज, और वो ब्रेड का जो सेलिंग प्राइस है ना मार्केट में 100 रुपीज है, राइट। सो 100 रुपीज माइनस 50 रुपीज, you will get 50, which is known as value added. Okay, that is the value added in the country, you can say, if there is only one factory and that is producing only one good, that is bread. लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना इकोनॉमी में, एक ही फैक्ट्री नहीं होगा, एक ही गुड्स नहीं होगा, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। तो ऐसे ही सोच के सारे जो आउटपुट है उनको ऐड कर लेना है, उनका वैल्यू निकाल लेना है। ऐसे ही सारे जो इनपुट है उनका वैल्यू निकाल लेना है, उन सबको ऐड कर लेना है, तो टोटल इकोनॉमी का वैल्यू एडेड आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes. Yeah, is it clear till this much? Okay, Yes. now value added से हमें क्या पता लगता है? Value added से हमें पता लगता है GDP at MP। हमारे पास GDP at MP है क्या? Gross Domestic Product at Market Price है क्या? Value added means GDP at MP, और national income means NNP at FC. Please understand. So again the same thing, value of output minus intermediate consumption. Intermediate consumption is nothing but the value of input. इसको मैंने दूसरी लैंग्वेज में लिखा है ताकि एग्जाम में वैल्यू ऑफ इनपुट की जगह पे अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ तो कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स भी कभी कल दिया जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर मैंने ये फॉर्मूला को एक्सपैंड किया, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो ये फॉर्मूला है ये कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमें पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है। एग्जाम में कभी कल इनडायरेक्टली सेल्स दिया होगा, चेंज इन स्टॉक दिया होगा और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा। अगर ये थर्ड वाला फॉर्मूला आपको पता होगा तभी ना जाके आप निकाल सकते हो, इसीलिए ये फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? टेल मी। Yes. ओके, अब ये जो अब देखो ये वैल्यू ऑफ आउट जो आपने वैल्यू एडेड निकाला ना, ये वैल्यू एडेड जीडीपी एट एमपी होता है। ये जीडीपी एट एमपी से हमें ये नेशनल इनकम निकालना पड़ता है। तो ये जो बेसिक्स पढ़ाया गया था ये 12th में पढ़ाया गया था, ये 12th की बुक से ही समझ में आएगा कि एनएनपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तभी जाके हम लोग जो है एनएनपी एट एफसी निकाल सकते हैं। ये बेसिक 2-4 फॉर्मूला है, मैं ये आपको पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, अब एक और फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि इनकम मेथड मेरा कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज इनकम मेथड? अब इनकम मेथड से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड से हम लोग पहले कैलकुलेट करते थे जीडीपी एट एमपी, उसके बाद इस जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट करना पड़ता था और कन्वर्ट करके हम लोग एनएनपी एट एफसी निकालते थे। वैल्यू एडेड मेथड से डायरेक्टली नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इनकम मेथड से देखो एनएनपी एट एफसी डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट वगैरह ने ऐसा फॉर्मूला दे रखा है कि एनएनपी एट एफसी से आप डायरेक्टली जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लीजिए, उसको तोड़ मरोड़ करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली नेशनल इनकम आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो एनएनपी एट एफसी इज व्हाट? नेशनल इनकम। इसका फॉर्मूला सीधा दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये जो कंपनसेशन, ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, देयर इज नो अदर गो। इनकम मेथड में देखो हमने कंट्री के इनकम को ले लिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है? इनकम है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? इनकम है। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? इनकम है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? इनकम है। ये चार चीज को ऐड करेंगे। When we add these 4 things, we will arrive at NNP at FC. What is compensation of employees? Of compensation of employees का भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, wages and salary in cash plus wages and salary in kind plus employer contribution to social security schemes, ठीक है। तो कैश में मिलता है लोगों को पैसा जो बैंक अकाउंट में आता है, सैलरी वगैरह। उसके बाद कंपनसेशन इन काइंड, कभी कल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देता है ना कोई भी कंपनी, कभी कल ऑयल भरवाने का भी पैसा देता है कोई भी कंपनी, राइट, पेट्रोल का पैसा देता है। अगर आपके
फादर गवर्नमेंट जॉब में हो या मम्मी गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई भी वर्किंग हो, तो उसे पूछ लेना कंपनसेशन इन काइंड क्या होता है। काइंड मतलब जो पैसे में नहीं दिया जाता है, जो पैसे के अलावा कोई भी दूसरा चीज में दिया जाता है। सपोज हाउस दिया हुआ है अगर गवर्नमेंट ने, तो पैसे तो नहीं देना पड़ रहा है ना एक एम्प्लॉय को, तो वो सब कंपनसेशन इन काइंड आ जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इसके अलावा जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, वो कुछ पैसा कंट्रीब्यूट भी करते हैं अपने तरफ से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे, तो वो भी एम्प्लॉइज का एक कंपनसेशन हो गया। तो ये तीनों को ऐड कर देंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आ जाएगा। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड refers to the income of the self-employed person who use their own land, labor, capital and entrepreneurship to produce various goods and services. It comprises in imputed factor, okay, rent, wages, profit और capital। अगर एक मतलब आदमी है या एक बंदा है, उसके पास मतलब सपोज वो डॉक्टर है, ठीक है, सपोज वो डॉक्टर है, तो शाम को सपोज दोपहर में वो अपने क्लिनिक पे बैठता है और शाम को वो कुछ और इकोनॉमिक एक्टिविटी करके पैसा कमाता है। सपोज वो एमबीबीएस का क्लास भी ले रहा है, तो उसके पास दो साइडेड इनकम हो गया ना, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन वो देखो बहुत तरीके से पैसे कमा सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो कोई बिजनेस कर रहा हो और उससे पैसा कमा रहा हो, तो वो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पढ़ लेना, इसका वो हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो लास्ट वाला चीज था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड है फॉरेन कंट्रीज में, वो जो पैसा भेज रहे हैं यहाँ पे माइनस यहाँ पे जो भी फॉरेन फैक्टर्स एम्प्लॉयड है, राइट, यहाँ पे भी लोग फॉरेनर्स का पैसा लगा हुआ है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल और वो लोग भी तो लगाते हैं। तो यहाँ से जो पैसा बाहर जा रहा है उनको माइनस कर देना है, और वहां से जो पैसा आ रहा है उनको ऐड कर देना है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तुम्हें पता चल जाएगा कि विदेशों से एक्चुअली में फैक्टर इनकम आ कितना रहा है। व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम आर दोज इनकम्स व्हिच आर अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर? Yes. Is it clear till this much? Tell me. Yes. Okay. So in the next class, we'll discuss about expenditure method and we'll complete it. लेकिन expenditure method पढ़ाने से पहले मैं तुम लोगों को वो पढ़ा दूंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोग क्लास अटेंड क्यों नहीं करते, बीच में क्यों भाग जाते हैं? Yeah. Any reason you know? No, Yes. sir, personally. Okay. No problem. But I'm expecting that you are understanding. Okay. Right? Yes. sir. Okay. Okay. Thank you, Ji. Thank you for joining the class. Thank you. We'll meet in the next class. Okay. Yeah. Okay.